اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین جمعہ، سب سے پہل اس وحدہ لا شریک لہ کی تعریف و توصیف کی بڑائی حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے ہے جنہوں نے ہم بن نو انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں صحیح راہ دکھانے کے لیے، ہمیں کتاب و سنت پالانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. ان میں سے آخری کڑی، آخری لیڈر، تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت درود و سلام نازل علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز دوستو، آج کی اس جمعہ خطبہ میں آپ حضرات کے سامنے تربیت اولاد کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا. امید ہے کہ آپ باغور سنیں گے اور سننے کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. عزیز دوستو، اولاد اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور جو اولاد سے بے دور ہیں، یعنی جن کے پاس اولاد ہے ہی نہیں، اس سے پوچھئے کہ اس کا رہن سہن، اس کا گزر بسر کیسا ہوتا ہے، اس کی زندگی کیسی گزرتی ہے، تو وہ کہیں گے افسوس ہیں، ہم بہت بد نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اولاد نصیب نہیں فرمائی. تو عزیز دوستو، جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے نوازا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی، وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے، انہیں صحیح راستہ دکھائے، انہیں دینی تعلیم کی طرف آگے بڑھائے. اس لیے کہ اگر ہم سوچیں گے کہ ہم خود صحیح راستے پر چلے اور ہماری اولاد کو صحیح راستے کی طرف چلنے کی طرف نہ بلائے یا صحیح راستہ نہ دکھائے، تو ہم اس قرآن کریم کی آیت کے خلاف ہیں، جس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اس قرآن کریم کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو اعلان کیا ہے جن کے پاس اولاد ہیں، جن کے پاس بیٹا ہے، جن کے پاس بیٹی ہیں، ان لوگوں کو آگاہ کیا ہے، جن کے پاس اہلیہ ہیں، ان سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے آگاہ کیا ہے. کیا ہے لوگوں؟ جو لوگ ایمان لے کے آئے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ جو لوگ ایمان لے کے آئے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ قوا انفسکم، کہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو
जहन्नम की आग से बचा ले। व अहलीकुम नारा, और अपने अहलो अयाल को, अपने बाल बच्चों को, अपने बीवियों को, अपने घर वालों को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को जहन्नम की आग से बचा ले। व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा यु'मरुन, कि जहन्नम के ऊपर सख्त मिजाज फरिश्तों को मुकर्रर किया गया है, और वो फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के बगैर कोई काम नहीं करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जिन चीज़ों को करने का हुक्म देता है वो उसी चीज़ों को करते हैं। अजीज दोस्तों, हम अगर एक गार्जियन हैं, हम अगर बाप हैं, तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हमारी जो औलाद हैं, हमारे जो घरेलू अहलिया हैं, हमारे जो भाई बहन हैं, उसको कैसे सही तरीके से ले जाया जाए, उसको जहन्नम की आग से कैसे बचा लिया जाए, ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। अजीज दोस्तों, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रअयतिही, कि हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में कल क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा कि आप जो बाप की हैसियत से गार्जियन बने थे, तो आप अपनी औलाद को सही तरबियत दिए कि नहीं, उन्हें दीन इल्म सिखाए कि नहीं, उन्हें नमाज की तरफ बुलाए कि नहीं, उन्हें ज़कात देने के लिए कहे कि नहीं, उन्हें हज करने के लिए कहे कि नहीं। आपसे हर चीज के बारे में पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम गार्जियन हैं तो हम सिर्फ आकर के 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करेंगे। हमारी औलाद 5 वक्त की नमाज अदा करे या ना करे, उससे हमारे कोई जरूरी नहीं है, या नहीं हम उससे अलग हैं। अजीज दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस बयान फरमाई। हजरत माक़िल बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स को घर की जिम्मेदारी हो, या मस्जिद की जिम्मेदारी हो, या मदरसे की जिम्मेदारी हो, अगर उसको गार्जियन बना दिया गया है और वो गार्जियन होने के नाते वो गार्जियनियत को सही से नहीं निभा रहे हैं, वो अपने आप में बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन अपनी औलादों का ख्याल नहीं करते हैं, यानी जिम्मेदारी वो सही से नहीं निभा रहे हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के लिए जन्नत को हराम करार दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मा मिन अब्दिन यस्तरइल्लाहु रअयतन यमूतु यौम यमूतु व हुवा गाशुन लिरअयतिही इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहि जन्नह। इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अगर किसी शख्स को किसी चीज की जिम्मेदारी दे दी जाए और उस जिम्मेदारी में वो धोखा करता रहे यहां तक कि उसकी मौत आ जाए, तो ऐसे शख्स के ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत को हराम कर दिया। अजीज दोस्तों, इसीलिए हमें और आपको चाहिए कि हम अगर 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करते हैं तो हमारी औलाद को भी हम मस्जिद में पकड़ के लेके आए। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस बयान फरमाई जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अगर तुम्हारी औलाद 7 साल के हो जाए तो उन्हें पकड़ करके मस्जिद लेके आइए, और 10 साल के भी हो जाए और मस्जिद आप नहीं ला रहे हैं या आपकी कहने पर वो मस्जिद नहीं आते हैं,
तो आप उसको मारिए। अजीज दोस्तों, हमारे समाज के अंदर कोई ऐसा नहीं है, नहीं देखे हैं, नहीं सुने हैं कि मेरा बेटा नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नहीं गया इसलिए हम उसको आज पिटाई किए। नहीं सुने, नहीं देखे हैं। लेकिन वही बाप को अगर उसका बेटा कमा करके पैसा लेके नहीं आया या पैसा रख लिया, उसके बाप के पास अगर जमा नहीं कर रहे हैं, तो वही बाप अपनी औलाद से, अपने बाल बच्चों से लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं कि फला जगह तुमको हम कमाने के लिए भेजे, तुमने क्यों हमको पैसा ला के नहीं दिया। अजीज दोस्तों, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मुरु औलादकुम बिस्सलात वहुम अबनाउ सब'i सिनीन, कि आपका बेटा जब 7 साल का हो जाए तो आप उसको नमाज का हुक्म दीजिए। अगर वो 7 साल की उम्र में नमाज नहीं पढ़ते हैं, वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ 10 सिनीन, और वो 10 साल के हो जाते हैं, उसके बावजूद भी आप वो नमाज अदा नहीं करते हैं, आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो आप उसको मारिए। अजीज दोस्तों, इसीलिए कि कल क़यामत के दिन सबसे पहले जिन चीजों का सवाल होगा वो है नमाज। कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा कि आपने 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करके आए थे कि नहीं आए थे। कल क़यामत के दिन ये पूछा नहीं जाएगा कि आपका फला बेटा कितना कमा करके आपको दिया, ये नहीं पूछा जाएगा। कल क़यामत के दिन सबसे पहले ये नहीं पूछा जाएगा कि आप रोजा रख के आए थे कि नहीं आए थे। कल क़यामत के दिन सबसे पहला जो सवाल होगा वो सवाल ये होगा कि आप नमाज अदा करते थे कि नहीं अदा करते थे। अजीज दोस्तों, आज हम लोग कहते हैं कि हमारी औलाद हमारी बात सुनती नहीं है। हम कहते हैं बेटा नमाज पढ़ने के लिए जाओ, नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? उसका एक वजह यह है कि हम बचपन में अपनी औलाद को सही तरबियत नहीं देते हैं। बचपन में हम अपनी औलाद को मोबाइल दे देते हैं, बेटा गाना सुनो, मजे से घूमो और मजे से फिरो। लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि बेटा मदरसे में जाकर के पढ़ के आइए, बेटा हम नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तुम भी आओ मेरे साथ। उंगली पकड़ करके हम लोग कभी लेके नहीं जाते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तब कहते हैं बेटा जुमा पढ़ के आओ। हम लोग क्या कहते हैं? जुमा की नमाज पढ़ने के लिए जाओ बेटा उठकर। लेकिन ये नहीं कहते हैं कि बेटा फजर की अजान हो गई है, आप जाके मस्जिद में नमाज अदा करके आइए। इन चीजों के बारे में हमारा ख्याल नहीं होता। तो सबसे पहले जो सवाल होगा कल क़यामत के दिन वो इस चीज के बारे में होगा कि आपने नमाज का हक अदा किया था कि नहीं किया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि इन्ना अव्वला मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति मिन अमली सलातुहु, कि कल क़यामत के दिन जिन चीज का सवाल होगा वो चीज ये है कि नमाज के बारे में सबसे पहले पूछा जाएगा कि आपकी नमाज दुरुस्त है कि नहीं है, आप सही से नमाज अदा करके आए कि नहीं आए। उन्हीं चीजों के बारे में कल क़यामत के दिन सबसे पहले पूछा जाएगा। अजीज दोस्तों, आज हम औलाद की लालच में पढ़ करके, माल की लालच में पढ़ करके दीन को भुला बैठे हैं। अजीज दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, कि हमारे पास जो माल है, हमारे पास जो औलाद है, ये हमारे माल और दौलत, ये हमारी औलाद हमारे लिए फितना है। अजीज दोस्तों, फितना क्यों नहीं है हम बताते हैं। आज हम लोग क्या करते हैं कि अपनी औलाद को सही ढंग से रखने के लिए, इस जिंदगी को सही से गुजारने के लिए, आखिरत की तरफ नहीं, इस जिंदगी को सही से गुजारने के लिए हम अपनी औलाद के लिए हलाल और हराम की तमीज नहीं करते हैं। पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ खर्च कर रहे हैं, हमें कोई फिक्र नहीं है। बस हमारी औलाद की परवरिश सही तरीके से हो जाए, यानी हम अपनी औलाद की मोहब्बत में, हम अपनी औलाद की फिक्र में दीन को छोड़ करके दुनिया में लग गए। अजीज दोस्तों, आज इस मस्जिद की हालत ये है कि 12:15
यानी 12:15 बजे अजान होने का वक्त है और हम लोग 12:25 में आना चालू करते हैं। अजीज दोस्तों, इस मस्जिद में अजान देने के लिए मुअज्जिन नहीं मिल रही है कि किसको बुला करके अजान दिया जाए। अजीज दोस्तों, हम लोगों की तरबियत अगर हमारे वालिदान बचपन से किए होते तो आज हमारी हालत नहीं होती। अजीज दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस बयान फरमाई, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जब आपका बच्चा का शऊर हो जाए, यानी आपका बच्चा बोलने के लायक हो जाए, सुनने के लायक हो जाए, दिमाग में बात बैठाने के लायक हो जाए, तो आप अपनी औलाद को इस चीज की तालीम दीजिए कि ऐ मेरे बेटे, इस्लाम के 5 अरकान हैं, इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं इस्लाम के 5 अरकान क्या हैं। अजीज दोस्तों, तो हमें और आपको चाहिए कि हम जब गार्जियन हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, तो उस जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने छोटे छोटे बच्चे को बताए कि ऐ मेरे बच्चों, बुनियाल इस्लामो अला खमसिन शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हम अपने बच्चों को बताए कि मेरे बेटा, इस्लाम की 5 बुनियादी अरकान हैं, उसमें से पहला रुकन यह है कि आपको एक अल्लाह तस्लीम करना होगा, यानी अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है। आप इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई पूजा पाठ के लायक नहीं है। व इक़ामिस सलाह, और बचपन से ही अपनी औलाद को इस चीज की तरह तरबियत दे कि मेरे बेटे, हम ज़ोहर की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आप भी मेरे साथ चलिए। आप कह के तो देखिए, आपका बच्चा ऑटोमेटिक अमल करेगा। अजीज दोस्तों, बच्चा खुद तरस रहा है कि मेरा बाप कब कहेगा कि बेटा मेरे साथ मस्जिद चलो, लेकिन हम लोग कहते नहीं। अजीज दोस्तों, तो हमें और आपके लिए जरूरी है कि हम बचपन में अपने औलाद को बताए कि वो इक़ामिस सलाह, ए बेटो मेरे साथ चलो, नमाज अदा करना होगा, और नमाज को अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए फर्ज किया है, इसलिए इस चीज को आप ध्यान में रखिए। व इताइज़ ज़कात, ऐ मेरे बेटो, जब तुम बड़े हो जाना, जब तुम्हारा पैसा कमाने के लायक हो जाना, तो तुम्हारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात को भी फर्ज किया है, इस चीज़ का भी तुम ख्याल रखना। व हज बैतुल्लाह व सौम रमज़ान, और ऐ मेरे बेटो, तुम जब बड़े हो जाना, तुम्हारे पास जो पैसा हो जाएगा, सऊदी अरब यानी हज करने का पैसा जब तुम्हारे पास हो जाएगा, तब तुम हज करना है मेरे बेटो। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए हज को फर्ज किया है, अगर तुम्हारे पास आने जाने का रुपया है। व सौम रमज़ान, और अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए रमज़ान का रोज़ा भी फर्ज किया है मेरे बेटे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क्या मेरे बेटो, अल्लाह तबारक व तआला ने तुमसे पहले लोगों के ऊपर भी रोज़ा फर्ज किया था, और तुम पर भी फर्ज किया है, ताकि तुम मुत्तक़ी और परहेज़गार बन जाओ। बड़े होने के बाद इन चीज़ों का भी ख्याल रखना। दूसरी बात, वक्त बहुत तेजी से निकल जाता है। लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं, क्या है मेरे बेटो, तुम मरने से पहले या तुम अपनी जिंदगी में कभी शिर्क जैसे गुनाह नहीं करना। लुक़मान अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, वइद क़ाल लुक़मान लिइब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाहि इन्न शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम। लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कह रहे हैं कि मेरे बेटे, तुम शिर्क वाला गुनाह कभी नहीं करना, इसलिए कि शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। अजीज दोस्तों, सूरह बकरा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रक बिही व यग़फिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। हमारे समाज के अंदर शिर्क को इतना हल्का समझ लिया है,
जैसे उसके नाक के ऊपर एक च्यूंटी बैठी हुई है। अजीज दोस्तों, लुकमान अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मेरे बेटा शिर्क तुम लोग कभी नहीं करना। क्यों नहीं करना? शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। कुरान करीम में दूसरी जगह अल्लाह ताला कह रहा है कि इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रक बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, कि अगर आप शिर्क जैसा गुनाह कर लेते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपको माफ़ नहीं करेगा, और शिर्क के अलावा जिस गुनाहों को चाहेगा तो माफ़ करेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं माफ़ करेगा, लेकिन शिर्क को कभी माफ़ नहीं करेगा। एक चीज़ ध्यान में रख लीजिए कि अगर आप शिर्क वाले गुनाह, भी बताता हूँ, शिर्क वाला गुनाह अगर आप पहले कर चुके हैं तो अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांग लीजिए। और अगर आप अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी नहीं मांगते हैं और मर जाते हैं तो कल क़यामत के दिन आपको जहन्नम में जाना होगा। अजीज दोस्तों, एक हदीस में आपको सुनाता हूँ, 2 हदीस सुनाऊंगा, 2 मिनट में उसको खुद ब खत्म कर दूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मन तअल्लका तमीमतन फ़क़द कफ़रा औ अशरका, कि कोई भी शख्स अगर ताबीज़ या सूता या धागा शरीर के अंदर बांध देता है, अपने जिस्म के अंदर कहीं बांध देता है, लटका लेता है, तो ऐसा शख्स मुशरिक हो जाता है, ऐसा शख्स शिर्क का गुनाह करता है। अजीज दोस्तों, तो हमें और आपको चाहिए कि अपनी औलाद की सही तरबियत के लिए उन्हें बचपन में बताएं कि मेरे बेटा, मेरे मरने के बाद कभी तुम ताबीज़ वगैरह, धागा वगैरह, सूता वगैरह जिस्म के अंदर हाथ वगैरह में नहीं बांधना। और एक नसीहत करके जाना हमें और आपको कि ऐ मेरे बेटो, तुम कभी भी अल्लाह के अलावा किसी गैरुल्लाह की कसम नहीं खाना। मेरे बेटे, मेरे मरने के बाद इन चीज़ों का भी ख्याल रखना। इसी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मन हलफा बिगैरिल्लाह फ़क़द कफ़रा औ अशरका, जिसने अल्लाह के अलावा किसी चीज़ की कसम खाई उसने शिर्क किया। अजीज दोस्तों, हम और आप अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह की कसम कैसे खाते हैं उन चीज़ों को बता देते हैं। हमारे और आपकी कोई मामले में बात नहीं बनती है तो हम लोग कहते हैं, तुम्हारी माँ की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया, ये ज़मीन की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। हम लोग कहते हैं हमें और आपको कसम खाना है तो सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह तबारक व तआला की कसम खाना है, किसी मिट्टी और किसी आदमी का या कुरान छू के कसम खाना शरीयत में जायज़ नहीं है। इससे हमें और आपको बचना चाहिए। आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को अपनी औलाद की तरबियत करने की तौफीक। आमीन।